हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 न्यू चैप्टर, बट लेट मी टेक वन मोर लेक्चर ऑन द एक्सरसाइज. After this lecture we will start our chapter number 4. Ready? So let's start with the numerical number 13. Explain clearly with examples the distinction between a magnitude of displacement, means value of displacement, which is called distance, over an interval of time, and the total path length of path covered by a particle over the same interval. Means कि we have to give the difference, similarity between these two things, है ना. We have to make a distinction between displacement and path length for the same period of time. So for that, let's have an example. Suppose you are starting your journey from point A and you are going to point B. The distance between A and B, let's assume it is 100 meter. Ready? And imagine you are traveling from A to B. You are traveling from A to B. So in that case, what will be your displacement? Ready? So value of your displacement is 100 meter. And what will be your path length? देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर. पाथ लेंथ, द सेम केस, फॉर द सेम केस व्हाट विल बी द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू. So in that case you are starting from A and going to B. How many distance you will cover? How much distance you will cover? So the distance is 100 meter. So here we can say displacement and path length are same. एक्चुअली ये पूरा जो टॉपिक है ना वो मैंने थियरी में अच्छे से पढ़ाया है. रेडी? बट ये क्या न्यूमेरिकल में है, इसलिए फिर से रिवाइज करा देता हूँ. सो व्हाट दिस इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स इफ यू आर traveling in same direction, मतलब सिर्फ A से B जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज नहीं करो, मतलब B से टर्न नहीं लगा रहे हो, सिर्फ A to B, सिंपली A to B means you are traveling in the same direction, means in a single direction. Ready? If you are traveling in the same direction, in that case only your value of displacement is always equal to the path length, which is a important. Now see, suppose I am returning from B. अब B से मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ. मान लो कि ये डिस्टेंस है मेरा 40 मीटर. सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर. सो इन दैट केस व्हेन आई एम गोइंग टू, इसको बोल दो ये पॉइंट है C. इफ आई एम गोइंग टू A to B and B to C, in that case what will be your displacement? Value of your displacement. Displacement is the shortest distance between initial and final point. In this case initial point is A and final point is C. So A और C के बीच का shortest distance जो कितना है? 60 मीटर. So displacement is 60 मीटर. What will be the path length? तो path length A to B 100 मीटर और B to C 40 मीटर. So the path length is a 140 मीटर. So यहाँ पे एक और रूल आएगा. इफ यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, then always path length will be greater than value of displacement. अगर आप अपनी
मोशन की डायरेक्शन चेंज करते हो तो पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा. If we merge these two formula, we can always say in general path length is always greater than or equal to value of displacement. Ready? In general, path length is always greater than or equal to displacement. Ready? So ये हो गया difference between path length and displacement. Now let's talk about the case number B. उसमें क्या फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल. रेडी? ओके, सो ready. Now the same thing, we have to take the distinction between average speed. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, बहुत लंबा लंबा लिखा है, बट एक्चुअली में द सेम टाइप ऑफ रिलेशन, दिस वन एंड दिस वन, कि मान लो आप सिंगल डायरेक्शन में जाते हो तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा. ठीक है, सो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज अ path length by time and average velocity is what? Displacement by time. If we take as a value, simply displacement लिखोगे तो भी चलता है. ठीक है, सो मान लो कि आप ऐसे करो, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब हमें पता है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल होगा. अब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल हो जाएगा तो इन दैट केस एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी जितना हो जाएगा वैल्यू. ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम है. अब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम हो जाएगा तो मतलब राइट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आर सेम. सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. बट अगर आप अपना मोशन चेंज करो लाइक दिस, ए टू बी एंड बी टू सी, in that case we can say path length is greater than displacement. If path length is greater than displacement means we can say अगर path length की वैल्यू ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी. सो इन दैट वी कैन से एवरेज स्पीड is greater than the magnitude of displacement. Ready? चलो, in general what can we say? That in general we can say average speed is greater than or equal to magnitude of average velocity. So these are the rule कि कब डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम होंगे, कब पाथ लेंथ ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, कब ये रिलेशन होगा, और सेम लाइक दैट द थ्री रिलेशन. रेडी? चलो, नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल नंबर 14. A man walks on a straight road from his home to a market. So we can say this is the home and here this one is a market. Distance between home and market is given by 2.5 kilometer and he is going home to market with a speed of 5 kilometer per hour. Ready? Finding the market close, he instantly turns and walk back with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर. मतलब जब वापस आता है तब उसकी स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर
आवर। What is the magnitude of average velocity and average speed for the time 0 to 30 minute, 0 to 50 minute and 0 to 40 minute? रेडी? सो देखो क्या फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड, एंड हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। ये दोनों हमें फाइंड करना है। कौन से ड्यूरेशन के लिए? सो फर्स्ट ड्यूरेशन इज फॉर 0 to 30 minute, second duration is 0 to 50 minute, and third duration is 0 to 40 minute. Ready? So in that case we can say कि पहले ये देखो कि हमें यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा। So let's talk about when you are going from home to market. ठीक है, सो होम टू मार्केट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलो वेलोसिटी कितनी होम से मार्केट की? 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। एंड टाइम हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे टाइम होगा t इज इक्वल टू 2.5 बाय 5। दैट मीन्स योर टाइम इज बेसिकली 30 मिनट। मतलब ये आएगा 1/2 आवर, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आवर मतलब 30 मिनट। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगता है 30 मिनट। वापस आने में कितना टाइम लगेगा? सो लेट्स कैलकुलेट व्हेन ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मार्केट टू होम। रेडी? चलो, सो अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है वापस आने के लिए? 7.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज द सेम, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर 2.5 किलोमीटर है तो वापस आने का भी 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 टाइम हमें फाइंड करना है। सो t इज इक्वल टू 2.5 बाय 7.5 विच विल गिव 1/3 आवर। 1/3 आवर मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं? 20 मिनट। मतलब वापस आने के लिए उसको लगते हैं 20 मिनट। रेडी? तो टोटल जर्नी की कितनी मिनट्स हो गई? 50 मिनट। सो पहले हमें बोला है कि 0 to 30 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। सो इन दैट केस वी कैन से 0 to 30 मिनट मतलब 30 मिनट मतलब वो होम से मार्केट जाने की बात कर रहा है ना, क्योंकि उसी में आपको 30 मिनट लग रहे हैं। सो फॉर केस नंबर 1 0 to 30 मिनट हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। नाउ द रूल जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में करवाया था, इफ यू आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर आप सेम डायरेक्शन में ही जाते हो तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसी होगी? सेम, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, है ना। सब सेम होगा ना, तो दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी फाइंड कर लो। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? 2.5 किलोमीटर बाय टाइम। कितना टाइम मिला था? 1/2 आवर। तो इसको यहाँ पे करो तो 1/2। सो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ द सेकेंड फॉर 0 to 50 मिनट मतलब 30 मिनट यहाँ से यहाँ जाने के थे, 20 मिनट वापस आने के थे। टोटल कितने हो गए? 50 मिनट। मतलब आपको पूरी जर्नी के बारे में बोला कि उसके वो केस में फाइंड करो। सो फॉर 0 to 50 मिनट एवरेज वेलोसिटी क्या था फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो होम से मार्केट गए और मार्केट से वापस होम आ गए, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। टोटल टाइम कितना था आने जाने का मिलके? 50 मिनट। तो यहाँ पे 50 मिनट लिख दो, पर आंसर तो क्या आएगा? 0। रेडी? चलो अब एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या होगा, पाथ लेंथ बाय टाइम। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2.5 किलोमीटर जाने का, 2.5 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस होगा 5। और टोटल जो हमारी मिनट्स लगती है टाइम, वो टाइम कितना था, तो देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1/2 आवर, वापस आने के लिए 1/3 आवर, तो टोटल टाइम होगा 1/2 प्लस 1/3 आवर्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5/3 प्लस 2/6 मीन्स ये होगा 5 इंटू 6/5, ये 6 ऊपर चला जाएगा। सो आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। रेडी। अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड केस 0 to 40 किलोमीटर के लिए, 40 मिनट के लिए। चलो अब 0 to 40 मिनट मतलब 30 मिनट में तो वो यहां से यहां आता है, बाकी बचे कितने, 10। तो 10 मिनट में इतनी स्पीड से जाएगा तो कहां पे पहुंचेगा। रेडी। सो देखो इट्स वेरी सिंपल, वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, और हमें कितनी मिनट के लिए फाइंड करना है, 10 मिनट के लिए। अब 20 मिनट में पूरा 2.5 किलोमीटर कवर करेगा, तो 10 मिनट में कितना करेगा, एग्जैक्टली हाफ। 20 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा, हाफ। 2.5 का हाफ होता है 1.25 किलोमीटर, सिंपल। और इसके लिए वो टाइम लेगा 10 मिनट। सो 30 मिनट यहाँ से यहाँ के और 10 मिनट वापस आने के लिए, हो गए आपके 40 मिनट। तो ये 40 मिनट के लिए आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी पहले। सो एवरेज वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.25। ये 1.25, ये 1.25, टोटल हो गया 2.5। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो हो गया 1.25 डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम तो देखो यहाँ से यहाँ जाने का वो टाइम कितना था, तो वो टाइम था 1/2, और यहाँ से यहाँ आने के लिए 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो टोटल टाइम होगा 1/2 प्लस 1/6। सो इट विल बी 1/2 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा 1.25 किलोमीटर पर आवर। और अब फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2.5 प्लस 1.25। तो टोटल डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.25 बाय 1/2 प्लस 1/6। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 5.625 किलोमीटर पर आवर। रेडी। 2.5 प्लस 1.25 डिवाइड बाय टोटल टाइम, सेम उसके जितना ही लगेगा, आंसर विल बी 5.625। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, easy but little bit lengthy. Ready. So in case if you are having any doubt you can ask me. Ready. I will try my best to give you the answer. Okay, thank you very much.